Well, and then
आगे से यार सुशील कुमार मोदी जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, डॉक्टर किरण दास, very distinguished members of the legislative, editors of newspapers, print and electronic media. I welcome academic status, a case for Bihar, endorsed by Nitish Kumar ji, the Honorable Chief Minister of Bihar. Is that she a renowned economist and a great writer appeared some valuable time. Released his monograph, August 12, the draft status of Bihar. I also welcome the Honorable Chief Minister, Nitish Kumar ji, and Deputy Chief Minister Sushil Kumar Modi, and the Patna Intelligence for this today's function. It is a matter of great elation and honor for our state that this historical city of Patna that we have in our midst, one of the greatest scholars of the world and one of the greatest sons of India, Jagdish Chandra. We are extremely grateful to him that Nitish is extremely busy in his schedule. He has just grown from London yesterday. Served some critical and professional commitments. He has allowed space for us to be here at Patna to release of the monograph. The monograph will be followed by this lecture, which I am sure will be yet another academic benchmark, whose content will not only be quoted for years, but also be become a policy guideline for public functionaries and intellectual research. This professor is a prolific writer on issues that go far beyond the conventional boundaries of economics. Many among us are reasonably familiar with his writing, but reading his book cannot be substitute for listening to his speech. It will be preposterous for me to recount his academic trajectory from a Vadodara to directorship of the Center for the Study of Global Governance at London School of Economics. But he was also both chair and president of Islington South and Tewkesbury constituency in the world of scholarship. But what is possibly not well known in our part of the world, that he has published a biography of Indian film star Dilip Kumar titled Nehru's Hero, Dilip Kumar in the Life of India. He has described the book as his greatest achievement for more than 15 times. He discovers parallel between the socio-political arena in India and his reflection on screen. His range is indeed encyclopedic. We are happy to inform, sir, that our state
after years of stagnation, is now on a revival track. While the social cataclysm that followed by democratization of the political process, there was near collapse of the state structure with the development agenda being a clear victim. Unfortunately, being a old Jamindari settlement, the quality of governance in the state was poor, both in pre- and post-independent Bihar. We did not have a viable functioning state. Of Sri Nitish Kumar ji was to establish the non-existing authority of the state. He knew very well that the well-oiled state machinery will be the ultimate instrument for ensuring the development as well as social justice. He has been successful in his mission to a great measure. The full resurrection of the state is yet to be complete, but the resonance of its functioning is being felt in the entire length and breadth of Bihar. However, building of the state structure is not a one-shot affair. Further, whereas building the state structure is not an easy proposition, creating a bridge between this and the people is an even more challenging task. Let me read out from the foreword of this book, because it will be crystal clear what is the background, how this was conceived in entirety. That after absence of proper governance in Bihar for years, there is a turnaround in the state. This turnaround is substantive and visible in many spheres, including physical infrastructure, education, health, public finance, and overall governance. All these can leapfrog development in the state if, respecting the federal ethos of the Constitution, the Government of India now extends the much needed resource support. Keeping in mind independence, particularly through freight equalization, and the fact that Bihar continues to be at the bottom of the table in terms of Human Development Index, it is highly desirable that the central government designates Bihar as a special and the state government, not on the letter alone. Ever since Nitish Kumar took over the reins of the state as the chief minister, he has been preoccupied with his agenda for special category status for Bihar. First, he got this agenda debated in the state legislature, a debate that was followed by government resolution proposing special category states for Bihar. However, his effort to meet the Prime Minister with this specific agenda went in vain several times, even though he was granted time to discuss on other matters. This book is the outcome, this monograph is the outcome of rigorous academic exercise and overall guidance and stewardship of Sri Nitish Kumar ji, justifying the grant of special category status for Bihar. It not only elaborates the historical neglect of the state, but President and the public functionaries for putting across agenda for long-term development of the state that is both sustainable and inclusive. Our Center for Economic Policy and Public Finance at Asian Development Research Institute was very happy to lend professional assistance to this research effort. A number of our scholars were involved in this work with a valuable contribution coming from Sri Kumar Singh. Others provide valuable inputs by Professor R.K. Shahi, Dr. Chinushri Dasgupta. Among the senior members of the state administration who have contributed much to this exercise are Sri Vijay Raghavan ji, Sri Naveen Kumar ji, Sri C.K. Mishra ji, and Dr. Arunesh Cholan. The cooperation here underlines the high commitment with which the present state administration is trying to discharge its development responsibilities. We are very thankful to all of them for their kind and valuable cooperation. In preparing the Hindi version of this important document, we have we are also thankful हो गया नहीं, अभी तो और होगा, लेकिन कैमरा आगे कर दीजिएगा, कैमरा को Honorable Speaker of Bihar Assembly, Mr. Chaudhary, for gracing this occasion. Thank you, sir. 10 मिनट के बाद तो नजर नहीं आएगा। Thank you.
अरे यार टेबल गिर जाएगा, टेबल में गिरा देगा काल। कैमरा टेबल में गिर जाएगा। हाथ में कुछ हिलाओगे तो पहले हम कर इधर सर, सर इधर, लेफ्ट 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 सर, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, बाय सर, बाय सर, बाय सर। इधर सर request the Honorable Deputy Chief Minister and Finance Minister of Bihar, Sushil Kumar Modi ji will speak. माइक क्या करें माइक? अरे यार जो हम लोगों ने ग्लोबल मीट और एक सब्जेक्ट बिहार आयोजित किया था, उसमें भी लॉर्ड मेघनाथ बिश्नोई को सुनने का हम लोगों को मौका मिला। और आज फोटोग्राफ के इस अवसर पर लॉर्ड मेघनाथ बिश्नोई हम लोग मौजूद हैं। और आप सब लोगों को इस बात की जानकारी होगी, इस समय देश के अंदर 11 राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य हैं और उसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तरांचल, ये आज देश के 11 ऐसे राज्य हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिला हुआ है। और बिहार भी ये मांग कर रहा है उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। इस किताब के अंदर विस्तार से बातों का जिक्र किया गया है कि इस विशेष राज्य के दर्जे के पैरामीटर्स क्या क्या है। मैं उसके विस्तार से नहीं में एक बात कहना चाहूँगा कि प्रति व्यक्ति पर कैपिटा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो आज बिहार का है वो 2786 रुपीज है। प्रति व्यक्ति विकासात्मक व्यय पर कैपिटा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, और पूरे देश का पर कैपिटा जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है दैट इज 4834। विधानसभा ने ये निर्णय लिया कि संकल्प किया कि 2015 तक हम बिहार को विकसित राज्य बनाना चाहते हैं, बिहार को डेवलप्ड स्टेट बनाना चाहते हैं। और जब पिछले दिनों 13th फाइनेंस कमीशन बिहार के दौरे पर आया था तो हम
हम लोगों ने ये मांग किया था 13 फाइनेंस कमीशन से कि हम चाहते हैं कि 2015 तक बिहार का पर कैपिटा जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है शुड बी एट पार विद द नेशनल एवरेज ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अगर आज जो विकासात्मक व्यय प्रति व्यक्ति का जो दर है, अगर इसी गति से बिहार आगे बढ़ता रहा तो 2039 में जाकर हम नेशनल एवरेज के बराबर पहुंच पाएंगे। इतने दिनों तक बिहार करने के लिए तैयार नहीं है। और सिर्फ 13वें वित्त आयोग के सामने हम लोगों ने मांग रखी कि हम चाहते हैं कि 2015 तक पर कैपिटा डेवलपमेंट बिहार का है वो नेशनल एवरेज के बराबर पहुंच जाए। और इसके लिए हम लोगों ने फाइनेंस कमीशन से मांग किया कि हमको 3,80,727 करोड़ रुपया 3,87,727 करोड़ रुपया अगर टोटल सेंट्रल ट्रांसफर होगा तभी अगले 5 साल के अंदर बिहार देश के बाकी राज्यों के विकासात्मक व्यय के संतुलित। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी मांग पर कैपिटा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नेशनल एवरेज के समकक्ष आकर खड़ा हो, इसके लिए 3,80,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। और ये तभी पूरा होगा जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। मैं आदि के लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि इस मोनोग्राफ में एक चैप्टर और जोड़ने की आवश्यकता है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट डिक्लेयर होने पर क्या क्या बेनिफिट मिलता है। क्योंकि लोग तो ये समझ रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार को लाभ होगा, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर क्या क्या एडवांटेज है इसके कारण राज्य तेजी से विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। उसमें जो मैचिंग या राज्य को अपना शेयर देना है वो हिस्सा भी काफी कम हो जाता है। और विशेष करके जब झारखंड अलग राज्य बने उसके बाद बचे हुए बिहार के अंदर बचे हुए बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना और अधिक अच्छा है। क्योंकि हमारे जितने भी औद्योगिक केंद्र थे वो सारे के सारे केंद्र दक्षिण बिहार में या झारखंड में चाहिए। तो हमारा जो एसेट था वो झारखंड में चला गया। हमारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेंटर थे झारखंड में चले गए, हमारे शैक्षणिक संस्थान झारखंड में चले गए। तो जो भी हमारे एसेट्स थे रिसोर्स था तो सारा का सारा और बिहार में केवल जमीन और पानी लैंड और वाटर ये दो एसेट हमारे बीच में हमारे पास है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज इस फोटोग्राफ का विमोचन देसाई साहब के द्वारा हुआ है और आगे आने वाले दिनों को इसको एक पूरे देश व्यापी मुद्दा बनाने में इस विमोचन के माध्यम से हम सफल हो पाएंगे। और पूरे देश के सामने अपना केस हमने ट्रीट किया है कि बिहार को क्यों विशेष राज्य का दर्जा मिला। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेघनाथ देसाई साहब का एक बार स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आगे केंद्र में जो भी सरकार बनेगी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अवश्य उपलब्ध कराएगी। धन्यवाद। स्पीकर उदय राज चौधरी जी, मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, लॉर्ड मेघनाथ देसाई जी, किरोड़ सिद्धार्थ गुप्ता जी, सवाल गुप्ता जी और मित्रों, बहुत संक्षिप्त रूप से कुल 4 बातें। पहले यह अत्यंत जानदार अवसर है। मुझे याद है जब मैंने बम्बई टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के प्रकाशन ट्रिब्यूट में 80 के दशक में काम शुरू किया था, तब से विभाग स्टेट्स के बारे में मैंने सुनना शुरू किया। मैं अकादमिक डिस्कशन में नहीं जाना चाहता कि डॉक्टर आशीष घोष या दूसरे अन्य अकादमिशियन ने जिन्होंने हिमाचल स्टेट के बारे में बहुत
सारी बातें कही वो क्या थी और वो कितनी प्रासंगिक। पर मैं मानता हूं कि होलोग्राफ उस दृष्टि से पहली गंभीर कोशिश है कि कम से कम हम उस अपनी छवि से, उस अपनी स्थिति से बाहर निकले। इसके लिए मैं नीतीश जी को, आदरी को, आयोजन, प्रकाशन और इस कार्यक्रम के लिए बधाई देना चाहूंगा। दूसरी बात, यह सूत्र जो आज हमें यहाँ दिखाई दे रहा है होलोग्राफ के प्रकाशन के रूप में, इसकी शुरुआत नीतीश जी ने जब कार्यभार संभाला बिहार का तब से दिखाई देती। उन्होंने जिन्होंने गंभीरता से अपने राज्य की स्थिति को समझने की कोशिश की उसमें से एक है और पहले दिन से स्पेशल कैटेगरी स्टेट की उन्होंने वकालत की। दरअसल ये सारी चीजें सिर्फ लिप सर्विस से नहीं होती जो हमारे पॉलिटिशियंस या हमारी पॉलिटिकल पार्टी के इलाकों की आस में करती रही है। इसके लिए काम करना पड़ता है और उस काम का परिणाम यह दस्तावेज है। कई बार मुझे आश्चर्य होता है जब चुनाव में प्रसंग सुनाई पड़ा उसी के बारे में उसमें ऐसा आया। आज मुंबई में फ्लड होता है, कई हजार करोड़ केंद्र सरकार दे देती है, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे राज्य जो प्राकृतिक रूप से इस रूप में स्थित है कि उनको विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए, उनको लेकर के इस तरह की चीजें शुरू होती है। एक और प्रसंग इसमें दूसरी बात के रूप में मैं कहना चाहता हूँ, इस काम को मैं जानता था कि काफी दिनों से सहवाल जी उसकी टीम कर रही है और दिल्ली में अस्वस्थ थे और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सहयोग से मैं दिल्ली गया था। बहुत अनुरोध किया कि उसके नोट्स भी आप पढ़ने को दें। उन्होंने दिया और कहा कि ये सारी संपत्ति नीतीश जी की है, इसलिए इसका प्रकाशन न करें। एक जर्नलिस्ट के रूप में तो मुझे करना चाहिए था, पर मैंने इस मर्यादा का निर्वाह किया। उन तथ्यों को आप पढ़ें तो आप समझ पाएंगे कि बिहार आज यहाँ पर क्यों है। पहली बार वे तथ्य डॉक्यूमेंट के रूप में आ रहे हैं। अगर ये चीजें सचमुच सार्वजनिक मुद्दा बने तो बड़ी गंभीर बात होगी। मैंने कोशिश की चुनाव में, मैंने इनसे आग्रह किया कि मैं उसको छापने का इरादा रखता हूँ, तो सहवाल जी ने मना किया कि नहीं, वो हमारी संपत्ति नहीं है। मुझे एक उल्लेखनीय बात इसमें दिखाई पड़ी कि आज राजनीति का दायरा यहाँ पहुंच गया है कि हर छोटे उस प्रसंग को भी जिसका अस्तित्व नहीं है लोग उठा करके मुद्दा बनाते हैं। पर ऐसे मुद्दे को चुनाव में नहीं उठाना, यह गंभीरता दिखाई देती है क्योंकि इसे चुनावी फायदा लेने का मकसद नहीं, बल्कि एक मर्यादा के साथ देश जाने, नई सरकार बनने को केंद्र में वो जाने कि सचमुच बिहार कहाँ खड़ा है। और बिहार को इस हिसाब से निकलना है, यह दस्तावेज उसका रास्ता दिखाता है। तो यह कोशिश एक अत्यंत गंभीर कोशिश है और इससे ही राज्य अपने भविष्य के बेहतर दिनों के बारे में देख समझ सकता है। तीसरी चीज, संस्थाएं समाज को बदलती है। मुझे याद है कि पहले इस देश में सांस्कृतिक क्षेत्रों की राजधानी या रहनुमाई करने वाले इलाकों के रूप में पाटलिपुत्र, काशी और प्रयाग की पहचान इंदिरा जी के जमाने में एक संस्था बनी भारत भवन, तक चीन की मैसे में थी, वो IAS अफसर थे, तो उन्होंने चीन के बारे में अपने वृत्तांत लिखे हैं। उसमें एक प्रसंग लिखा है कि प्रोफेसर मालोनिस चीन आए थे और उन्होंने क्या कहा, चीन में जो कुछ देखा उस वक्त चीन बहुत खराब स्थिति में था, पर उनके एक्शन को, उनके प्लान को देखकर उन्होंने टिप्पणी की कि चाहे हम जितने भी 5 ईयर प्लान बना ले, पर हम तब तक चीजों को कारगर नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर कुछ करने का विल पावर हो। संजीव भैया, कार्यक्रम के अध्यक्ष और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री और लेखक हम लोग कहाँ चल रहा है डॉक्टर वीरनाथ साई जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री नारायण चौधरी जी, आदरी के रक्षा पद चाहे जरूरी हो श्री सहवाल गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित विद्वत जन,
पत्रकार मित्रों, सरकार के अधिकारीगण, देवी और सज्जनों, मैं इस आयोजन के लिए सबसे पहले सहवाग गुप्ता जी को और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपनी तरफ से और बिहार के लोगों की तरफ से मैं लॉर्ड मेघनाथ देसाई जी का फिर से एक बार बिहार में स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। बिहार के लिए जब भी हम लोगों ने इनसे अनुरोध किया है, इन्होंने न सिर्फ हम लोगों की तरफदारी की है दुनिया के विभिन्न मंचों पर, बल्कि जब भी इनसे आग्रह किया गया है, इन्होंने बिहार के लिए समय निकाला। मेरे कार्यकाल में मुझे जहाँ तक स्मरण है, यह इनकी तीसरी यात्रा, जब इनकी व्यस्तताएं बहुत हैं और पूरे दुनिया के विभिन्न मुल्कों में इनका जाना होता है, वैसी स्थिति में बिहार जैसे प्रांत में आने का, जिसके बारे में पहले कोई सोचता नहीं था, विचार करना मुश्किल था। जबकि 3 बार हम लोगों के बुलावे पर यहाँ आ चुके। जब हमने इनसे अनुरोध किया तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में गठन में भी अपनी पूरी दिलचस्पी दिखाई और पूरा समय दिया। जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन की अध्यक्षता में गठित प्रोजेक्टर ग्रुप है, उसके भी माननीय सदस्य हैं और उस सिलसिले में भी जब उस ग्रुप की यात्रा हुई थी तो उस समय भी आप बिहार आए और आज फिर इस अवसर पर आप पधारे हैं, इसलिए आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन। बिहार बहुत ही पिछड़ा राज्य है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसको आगे लाने की जवाबदेही सबकी। कुछ वर्ष पहले बिहार राष्ट्रीय चिंता का विषय बना हुआ, और जब बिहार में परिवर्तन हुआ तो पूरे देश में लोगों ने खुशियां मनाई। और अब जबकि इतने दिनों में बहुत कुछ करने की कोशिश हो रही है, तो इसकी प्रशंसा न सिर्फ देश में हो रही है बल्कि देश के बाहर भी। और अब ये सही वक्त है कि बिहार के केस को मजबूती के साथ रखा जाए। ऐसा नहीं है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये मांग कोई पहली बार उठ गई, ये मांग पहले से उठती गई। बिहार के विधानमंडल में इस पर चर्चा अनेकों बार हुई। एक बार हम लोगों के कार्यकाल में हुई है, जहां तक मुझे स्मरण है 4 अप्रैल 2006 को इस पर विस्तृत चर्चा हुई बिहार विधानसभा में और एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव मंजूर किया गया। मुझे स्मरण है सही तिथि का, तो शायद 13 अप्रैल को ही प्रधानमंत्री जी से इस विषय में उनके कार्यालय से अनुरोध किया गया कि कुछ मिलना चाहते हैं। 2006 की मैं बात करूँ, आज पूरे 3 साल 1 महीना के बाद हम लोग इसकी चर्चा करें, तो 3 वर्ष 1 माह पूर्व, यानी 37 महीना पहले विधानमंडल ने इसको स्वीकृत किया और इसके लिए हम लोगों ने समय मांगा। बाकी चीजों के लिए तो हम जब समय मांगते रहे तत्काल समय मिलता था, लेकिन इस विषय के लिए समय आज तक नहीं मिला। एक आध बार ये क्वेरी की गई, ये प्रश्न पूछा गया कि कितने लोग आएंगे, तो बताया गया कि लगभग 25 लोग तो जरूर होंगे, क्योंकि सभी दलों के प्रतिनिधि आएंगे। तो खैर उसके बाद फिर कोई, और दिल्ली में हम लोगों का जो रेजिडेंट कमिश्नर का ऑफिस है, उनकी तरफ से इस बारे में कई बार कोशिश की गई, लेकिन वो समय नहीं मिला। इसलिए कभी कभी बीच बीच में मैं कहा करता था कि एक चीज के लिए समय नहीं मिला, बल्कि बाकी कामों के लिए जब भी हमने चाहा तब प्रधानमंत्री जी ने समय निकाला। तो ऐसा नहीं है कि वो चाहते तो नहीं मिलते। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात तो दूर, उस पर विचार करने की बात तो दूर, इस विषय को रखने के लिए समय नहीं मिला।
अब ये कार्यकाल आज एक तरह से समाप्त हो रहा है, कल रिजल्ट आएंगे, कौन सरकार बनाएगा, इस पर तो टेलीविजन चैनल्स में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनाएगा प्रधानमंत्री, वो तो चल रहा है। जैसे लोग सीरियल के साथ चिपके रहते हैं, उसी तरह से आजकल लोग चिपके हुए। मैं भी टेलीविजन देख नहीं पाता था, लेकिन मेरे कमरे में भी टेलीविजन लगा दिया गया है ताकि अगर इच्छा हो तो देख। तो अभी चल रहा है वो, इसलिए किसी को मालूम नहीं है कल रिजल्ट क्या होंगे और क्या है। लेकिन आज की तारीख ठीक चुनी गई, पहले भी हो सकता था, लेकिन इनका कागजात जो तैयार हुआ, ये दस्तावेज, और जब हमारे समक्ष इन्होंने इसके इंडोर्समेंट के लिए रखा, इसको देख ली और उस पर कुछ चर्चा हमारी हुई, इनसे भी शहबाज जी से और उमेश चावला जी से, जो हमारे सचिव हैं डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो उसके बाद वो वक्त आ गया, मॉडल कोड लागू हो गया। हालांकि ये भी एक अलग बात है, कितना लंबा मॉडल कोड, और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि रूलिंग पार्टी को कोई एडवांटेज दूसरी पार्टियों की तुलना में नहीं होना चाहिए, इसका निचोड़ ये, और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। इसका मतलब जो काम, अब जैसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की, हमारे यहाँ तो सर्वदलीय कमिटमेंट है इसमें, हाउस के अंदर कमिटमेंट, और सब लोगों का कमिटमेंट है कि जब भी चलना है साथ चलें। और बिहार में ऐसे मसले जब आए हैं तो सभी दल के लोग मिलकर गए। 12th फाइनेंस कमीशन को मिलकर मेमोरेंडम देना था, एक साथ साइन करना था। हम लोग केंद्र में थे, उसके बाद फिर सांसद थे, तो सबने साथ दिया। इस बार भी जब 13th फाइनेंस कमीशन के सामने बात को रखने की बात आई तो सबने मिलकर रखा। तो ऐसे विषय हैं जिस पर कोई मेरी समझ से राज्य के अंदर कोई दो राय नहीं हो सकती। तो खैर ये हुआ कि इसको बाद में तो करते कराते हुआ कि साहब अब किया जा सकता है, जब पोलिंग वगैरह सब काम खत्म हो गया। तो आज इसको आदरी के सेंटर के द्वारा इसको जारी किया जा रहा है, और आपने समय दिया तो ये बड़ा ही उपयुक्त मौका। अब सभी दलों के लिए ये मेरा जो इस पर सहमति है या एंडोर्समेंट है, वो इसलिए है कि बिहार के हित में, और इसमें कौन सी दो राय हो सकती, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी किताब नहीं है जो उसी के मन में ये बात आई है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो बिहार को क्यों मिलना चाहिए, उसको सारे तथ्यों को एक जगह संकलित करता है। और जैसा डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, बहुत चीजें शामिल की जाती हैं, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल की जाती हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर यार स्पेशल कैटेगरी स्टेट, अभी मजाक कर रहे थे, बिजली चली गई। जब फंक्शन की शुरुआत हुई तो एक क्षण के लिए बिजली चली गई, तो हमने लॉर्ड देसाई साहब को कहा कि देखिए ये भी जस्टिफाई करता है कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेट। यानी बिजली की जो हालत है ये, हम लोग सब यहाँ फंक्शन में मौजूद हैं, और पटना में ले दे करके यही एक होटल है जहाँ कोई इस तरह के आप जैसे लोग आकर टिक सकते हैं, या यहाँ कोई कार्यक्रम हो सकता है, वहाँ बिजली चली जाती है। तो फिर क्या चाहिए? हमारे यहाँ तो खास करके सीएम हाउस में जब विशेष बैठकें होती है, बाहर के लोग आते हैं, उसमें जरूर बिजली जाती है। हमने देखा है ये, तो वो एक सिम्टम है, बिहार की स्थिति खराब है। और अगर बिजली को ही ले ले तो प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता बिहार में 75 यूनिट, जबकि अब 75 हुआ है बढ़ करके 72 यूनिट, और आंकड़े बदलते रहते हैं, कोई 78 यूनिट भी कहते हैं, यानी 80 से तो कम है। और पूरे देश में 612 यूनिट। लक्ष्य है कि हम 1000 मिनिमम पर कैपिटा इतना हम उपलब्ध करा दें बिजली, और उसके हिसाब से प्लान हुआ है कि कितने पावर प्लांट्स कहाँ लगाए जाएं। और बिहार का मामला ऐसा है कि बिहार में झारखंड के अलग होने के बाद 2 बंद पावर प्लांट्स हमारे पास हैं। जिस दिन हमने शपथ ग्रहण किया है उस दिन बिहार का जनरेशन 0 मेगावाट, बरौनी और काठी दोनों बंद। कोशिश होती रहती है बीच बीच में, कभी चलता है कभी फिर बंद हो जाता है। फिर ये भी बहस चलती है कि इसको रिनोवेट करने से काम चलेगा,
या नहीं चलेगा, ये बहुत होती रहती है, इंजीनियरों के बीच की बात है। अब नई बिजली यूनिट लगानी है, बरौनी में 500 मेगावाट, कांटी में 500 मेगावाट, नबीनगर में एनटीपीसी के साथ मिलकर 2000 मेगावाट, यानी तकनीकी तौर पर 1980 मेगावाट, यानी 2000 मेगावाट के बराबर लगभग हुआ। या फिर निजी क्षेत्र के लोग यहाँ बिजली का प्लांट लगाना चाहते हैं। बाकी सब कुछ तो स्टेट से क्लियरेंस तुरंत हो जाता है। हम पानी का कमिटमेंट करते हैं, हमारे पास पानी है, कमिटमेंट करते हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस आसानी से मिल सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, और पूंजी लगाने वाले पूंजी भी लगाने को तैयार, और अगर पब्लिक सेक्टर में कुछ होगा तो उसके लिए बाजार से अपना इक्विटी डालने के बाद बाजार से धन प्राप्त करने की भी सारी गुंजाइश। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है कोयला। कोयला का लिंकेज नहीं मिलता। 11th प्लान में एक भी बिजली प्लांट को बिहार के लिए कोयला का लिंक केंद्र सरकार ने नहीं दिया, और 12th प्लान में भी अब तक कोई लिंक नहीं दिया गया। हेलो, अब आप बताएं, अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट बिहार को नहीं बनना चाहिए तो किसको बनना चाहिए? कोई एक क्षेत्र का उदाहरण ले लें, हमारे सारे इंस्टीट्यूशन झारखंड में चले। जो कुछ भी बिहार में अगर बना, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का काम हुआ, अधिकांशतः वो झारखंड में गए। अब बिहार में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बिहार में राज्य सरकार की पहल पर चाणक्य यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, फिर चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये हम लोगों ने अपने सोचे थे, और ये नेशनल लेवल कोशिश कर रहे हैं। तो क्या बिहार को नहीं मिलना चाहिए और सहायता? तो जरूर मिलनी चाहिए सहायता, हर क्षेत्र में ले, सड़क के मामले में ले, किसी भी चीज को ले लें, बुनियादी ढांचा के, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर आप जाएंगे तो हमें हमारे यहाँ गरीबी ज्यादा है। अब गरीबी पर भी हमने एक अंतर्राष्ट्रीय यहाँ सेमिनार कराया, तो ये सारी बातें सामने आ गई कि गरीबी को मापने का तरीका ही गलत है, और उसके चलते गरीबी रेखा के नीचे की सूची तैयार होती है, वो त्रुटिपूर्ण रहती है। तो पारिवारिक सर्वेक्षण के बाद 2 सुधार हम लोग करवा चुके हैं, और हम जहां कहीं भी जाते हैं लोग कहते हैं मेरा नाम छुपा। ये कुछ डिटेल्स में नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम सब लोग सुनने आए हैं मेघनाथ देसाई जी से, और सुनना चाहेंगे, हमारी भी दिलचस्पी है उनको सुनने में। तो गरीबी रेखा के नीचे भारत सरकार कहती है कि 72 लाख परिवार को ही मानेंगे बिहार, जबकि 1,13,00,000 रूरल एरिया में और करीब 11-12 लाख अर्बन एरिया मिला दीजिए तो एक मोटे तौर पर 1.25 करोड़ परिवार तो अभी है, और 56 लाख कंप्लेन रूरल एरिया के मिल चुके हैं। हमारे यहाँ प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग के अनूप मुखर्जी बैठे हुए, 56 लाख शिकायतें हम लोगों को मिली। अगर आधी शिकायतें भी जायज हो तो 1.5 करोड़ परिवार से ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि नहीं साहब, हम आपके यहाँ तो 72 लाख परिवार को गरीबी रेखा के नीचे माने। अब ये इतना बड़ा जो गैप है, तो आखिर किसी क्षेत्र में आप जाएं तो इसके चलते जो हमारा इंटाइटलमेंट है वो तो सीमित हो जाता है, चाहे वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अंत्योदय योजना हो, या गरीबी रेखा के नीचे रहने पर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में हो, या हमारे यहाँ बिजली नहीं जिसकी चर्चा कर चुके, तो हमारे यहाँ तो किरासन तेल को छोड़कर दूसरा कोई साधन नहीं। हम लिखते हैं दिल्ली को चिट्ठी के साथ 34% कोटा बढ़ाइए, तो दिल्ली से चिट्ठी आ जाती है कि कोटा तो नहीं बढ़ेगा, अब एपीएल के लिए जो किरासन तेल है उसको हम समाप्त करें, और बीपीएल की संख्या वो मानेंगे 72 लाख परिवार है हमारे यहाँ 1.5 करोड़ परिवार। तो जिस चीज को आप छेड़िए, जिस पैरामीटर पर अगर जज करने की कोशिश करिए, तो हर चीज पर यह दिखाई पड़ेगा कि बिहार एक नेग्लेक्टेड स्टेट, और इसके लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट का ये मामला बनता है। और जो प्लानिंग कमीशन ने जो तैयार किया है आधार, उसके आधार पर उस कसौटी पर भी कसकर हम बिहार को देखें तो बिहार खरा उतरता है, लेकिन इस पर विचार के लिए कोई तैयार नहीं। तो आज 15 तारीख को आप इसको जारी कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट को, और आपकी अपनी हैसियत है। अगर आपके मुंह से ये सारी बातें आती है तो कल के बाद कोई भी सरकार है, और मैं हम लोग हर पार्टी के लोग कह रहे हैं नहीं जीत रहे, तो कल पता चलेगा कल कौन जीतेगा।
कोई भी जीते इस मुद्दे को उठाए कि दिल्ली की सरकार जो भी बने और जो भी बिहार से जीते वो इस मुद्दे को पकड़ कर कहेगा कि हमारे समर्थन की बुनियाद यही होगी, हमारा आधार यही होगा। बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेट आप देते हैं तो एक अच्छा मौका है इस अवसर पर हम लोग इस बात को मजबूती से रखें। और इस मौके पर एक क्योंकि आप आए हुए थे, मैं इतना ये लोग संपर्क नहीं कर पा रहा। अब बहुत चर्चा हो जाती है डिलीवरी सिस्टम के बारे में, तो पीडीएस को जितना भी सुधारने की कोशिश कीजिए, लीकेज रह जाता या किसी भी प्रकार की सब्सिडी हम देते हैं तो एक तो उसको मैनेज करने के लिए भारी भरकम तंत्र की जरूरत पड़ती है और लाख निगरानी के बाद भी उसमें त्रुटियां रहती हैं हर राज्य में। तो आप इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, मैं एक बात रखता हूँ हम लोगों के दिमाग में, ये बात है कि अगर हम जो सब्सिडी को काइंड में देते हैं उसको समाप्त करके हम कैश बेस्ड सब्सिडी हर बेनिफिशियरी का खाता खोल करके बैंक में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर दिया जाए, क्वांटिफाई कर लिया जाए किसको कितनी सब्सिडी मिलती है और सब्सिडी के अमाउंट को प्राइस इंडेक्स के साथ जोड़ दीजिए। वो विशेषज्ञ इस काम को आसानी से कर सकते हैं और क्वांटिफाई करके हर किसी अगर एक गरीब आदमी को गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले आदमी को फूड सब्सिडी मिलनी है तो कितनी मिलनी है, उसका एंटाइटलमेंट कितना, उतना उसके खाते में चला गया, अब वो बाजार से खरीद ले। किसान के लिए खाद पता नहीं सब्सिडी किसको मिलती है, कारखाने को मिल जाती है किसान के नाम। सीधे आप उनका कितना रकबा है, कितने लोग खेती कर रहे हैं, इसका आंकड़ा ठीक होना चाहिए और सीधे उनको मिले। वो कितनी फसल लगाएंगे या लगा सकते हैं उसके आधार पर सीधे कैश उनको ट्रांसफर करें और ऐसा करने पर मुझको लगता है कि ये सरकारी तंत्र पर बहुत बड़ा जो खर्च है वो समाप्त होगा। हाँ, एक ही अथॉरिटी होनी चाहिए, वो बेनिफिशियरी की लिस्ट सही बने, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी। इसके लिए एक स्वतंत्र संस्था बने, विद कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उनको बनाया जाए, जैसे कैसे इलेक्शन कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वैसे ही बेनिफिशियरी को लिस्ट उसका तैयार करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बने, उसमें जितने लोग रखे जाने हैं रखे जाएं, एक ही चीज सबसे गहन ढंग से काम करे और उसके लिए उपाय किए जाए कि वो लिस्ट सही बने। सरकारी तंत्र पर उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है और वो लिस्ट सही बने और उस बेनिफिशियरी को उसके एंटाइटलमेंट के मुताबिक वो मिलता जाए तो मेरे हिसाब से जितने भ्रष्टाचार की बात होती है वो समाप्त हो जाएगी। वरना किसको नहीं मालूम है कि एफसीआई के गोदाम से निकला हुआ ट्रक बाजार में पहुंचता है, उस गरीब आदमी को नहीं मिलता है। कितनी जांच होती है, हमारे यहाँ विजिलेंस ने जांच की साहब, जांच तो हम करा सकते हैं, कार्रवाई में कुछ ले सकते हैं, लेकिन हालात सुधरते नहीं। हमने कूपन प्रणाली इंट्रोड्यूस की, कई बाधाएं खड़ी हो गई। तो इससे अच्छा है, मैंने इस विषय को इसलिए आप पर छेड़ा कि आप थे और आपके सामने इस बात को रखना नहीं, हम लोगों के दिमाग में ये सारी बातें आ रही है वो ठीक है या नहीं है आर्थिक दृष्टिकोण से, क्योंकि हम जिसके नाम पर सब्सिडी देते उसको मिल जाए, उसका सबसे अच्छा तरीका हम लोगों को लगता है कि सब्सिडी को क्वांटिफाई करके बेनिफिशियरी को सीधे दिया जाए। तो बिहार का जो केस है अगर इस प्रकार का हो, हम लोग तो बिहार में अपने लिमिटेड दायरे में इस चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे लड़की को साइकिल देते तो साइकिल खरीद कर साइकिल नहीं देते, लड़की को साइकिल खरीदने के लिए पैसा देते, वो साइकिल खरीद ले। उम्मीद किया जाता है कि कोई लड़की का पिता या लड़की का जो गार्जियन है वो लड़की के लिए 2000 रुपया उसको नहीं खाएगा। तो ये उम्मीद की जाती है कि आदमी में इतनी तो जरूर मनसाहत है, वो ऐसा नहीं करेगा। तो ये मान करके हम लोग अपने सीमित दायरे में किसी प्रकार का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हो और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त कर ले। तो एक तो बुनियादी ढांचा, इंस्टीट्यूशन आदि सब चीज़ों में विशेष सहायता तो मिलने का आधार बनेगा ही, और जो एक बात होगी कि जो भी यहाँ इन्वेस्ट करेंगे उनको कई प्रकार की रियायतें मिलेगी, कई प्रकार के कंसेशन मिलेंगे, और उस प्रकार के अगर कंसेशन मिलेंगे तो लोग प्रेरित होंगे यहाँ उद्योग लगाने के लिए, और यहाँ उद्योग लगेंगे तो
लोगों के लिए रोजगार का अवसर पैदा होगा। और उद्योग जगत के लोग भी बैठे हुए हैं। अब तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट की बात हम लोग करेंगे और सभी दलों से आग्रह करते हैं कि अपने अपने ढंग से भी इस विषय पर गौर करें और हम मिल करके तो कमिटेड हैं, आगे इस बात को हम लोग ले चलेंगे। लेकिन उद्योग से जुड़े हुए जो लोग यहाँ पर हैं, एक छोटी सी बात है, अब इतने बड़े पैमाने पर साइकिल हम लोग सरकार की तरफ से खरीदने के लिए पैसा पाते हैं, लेकिन हम यहाँ उम्मीद करते थे कि भाई साइकिल तो बनाने का डालिए, यहाँ पर कोई कारखाना लगाइए, कुछ भी तो इंडस्ट्री, इसमें तो कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है और किसी इन्वेस्टर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो मार्केट है, आपके पास मार्केट उपलब्ध है। अनेकों बार हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा की होगी, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि लोग ध्यान ही नहीं देते थे। अभी हाल में हम लुधियाना गए थे तो कितना वहाँ साइकिल के पार्ट पुर्जे बनते हैं। काम यहाँ हो और उसमें जो कुछ भी हो टैक्स वगैरह का लाभ हम लोगों को न हो, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो सब लोगों को मिलकर काम करना होगा और स्पेशल कैटेगरी स्टेट तो बिहार बिल्कुल क्वालिफाई करता है और ये मिलना चाहिए और इसके जरिए सब लोगों को सहूलियत होगी। सब लोग अपने ढंग से इस बात को करते हैं। अनेक डॉक्यूमेंट हैं और मैंने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इनके भी डॉक्यूमेंट्स देखे हैं। एमपी रहते हैं, वो भी कोई खराब डॉक्यूमेंट नहीं है, अच्छा ही डॉक्यूमेंट बिहार के बारे में लोगों ने बनाकर सब जगह भेजा है। तो डॉक्यूमेंट्स तो बन जाते हैं, समय समय पर बनते रहते हैं, अपडेट भी होते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उसके पीछे एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और एक संकल्प होना चाहिए और इसके भागीदार तो न सिर्फ राजनीति करने वाले को बनना पड़ेगा, बल्कि इसके लिए भागीदार तो सबको बनना पड़ेगा। सबसे पहले प्रबुद्ध जन को बनना पड़ेगा, मीडिया को बनना पड़ेगा। इसके पीछे क्या कोशिश क्या है? कोशिश यही है कि बिहार का केस बनाया जाए। तो मूल चीज है कोशिश। तरीका आदरी ने एक अख्तियार किया, इससे बेहतर तरीका कोई और अख्तियार कर सकते हो, स्वतंत्र। हम एक दूसरे के तरीके का मीन मेक न निकालें। असल चीज है कि हम चाहते क्या, चाहते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो इसमें सबको अपनी तरफ से, और जो हरिवंश जी ने जो बातें कही वो सब बातें गौर करने लायक है। और इसी प्रकार से मीडिया के सब लोगों की भी इच्छा, मैं देख रहा हूँ कि मीडिया में भी ये मुद्दा बन रहा है और इस प्रकार से अगर लोग बनाना शुरू करेंगे और अपने ढंग से लिखना शुरू करेंगे तो भाई ताकत तो आप ही में। हम लोग तो बोलते सब दिन रहते, जिस दिन आप पकड़ लेते हैं उस दिन वो मुद्दा बन जाता है और आप नहीं पकड़ते तब तक वो मुद्दा नहीं बनता है। तो मीडिया की तो ये ताकत है। तो क्यों नहीं हम लोग जो बोलते हैं और आप उसके पीछे उसको मुद्दा बनाकर जो ताकत देते हैं, सब लोग मिल जाएं। तो सरकार किसी की बने, सरकार कोई भी बनाए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, यही मकसद है। और इसके लिए मैं फिर से आप ही को आप सब यहाँ उपस्थित हुए आप सबको धन्यवाद देता हूँ और लॉर्ड देसाई साहब को एक बार फिर उनका मैं Chief Minister Nitish Kumar ji, Speaker Chaudhary. First of all, let me say it's a great pleasure to be back in Bihar for the third time. Tomorrow, the world may or may not change. But what we have seen in the newspapers and on the television is the change in the way Bihar is seen and the Chief Minister of Bihar is seen in the context of national politics. This transformation in the position of Bihar has been a great achievement in the last 3 years. I say that openly. My commitment to Bihar came when I first met Nitish Kumar ji in Delhi at one of the globalization meetings. It's been recently elected, and I was very impressed that in his speech to that audience,
He did not spend too much time blaming the past, but making clear what the tasks of the present and the future were. And what is more, he has performed some of those tasks already, but much more needs to be performed. In a sense, I entirely endorse this document. I have looked at it, I have read it, I endorse this document. It is a document which is powerfully argues a persuasive case to give special category status to Bihar. But what we are confronted with here is a political problem. Problem may be perhaps political economy. Because in a sense, there are no clear criteria, as far as I can see, which allows the government to say, if you meet this criteria, you get special status. There are criteria, but then there are also parties and parties. And we are now in a situation in Indian politics where perfectly sensible matters of whether a state deserves special category or not becomes a matter of political bargaining. And political bargaining in a politics which is full of very fragile coalitions. What I want to say today, first of all, is we have to reflect for a few minutes on why is it that Bihar and indeed UP, what was the heartland of India, the bedrock of its independence movement, the Doha. How come this region has now become not the most progressive region in the country, but it has fallen behind? There are historical reasons for this, but we have to reflect on this. That what was once upon a time the center of Indian economy, Indian polity. Now, yes, it is very populous. It returns 120 MPs overall to the Lok Sabha, and the players in Bihar and UP are big players on the national scene. But in terms of prosperity, in terms of progress, what was it that was left behind at independence, so that the land where not only the first president of India comes from Bihar, the first prime minister of India came from UP, and distinguished people like Jayaprakash Narayan came, Gandhiji started a Champaran movement here. Indeed, going a little bit further back, the Bishop of Calcutta, Bishop Heber, passing through on the river Patna, remarks, this is in early 19th century, that Patna was like St. Petersburg. It was that beautiful, and it reminded him that perhaps Patna could have been better than St. Petersburg. What has happened? Now, obviously, Bihar is turning up. In my mind, there is no doubt about it. We are at the beginning of a renaissance. This renaissance needs a lot of support from within Bihar and from outside Bihar, especially in the national politics. We have constructed a politics in India which originally the idea was that the party which fought for independence, Congress Party, would be in power at the center and everywhere else forever and ever. So the Constitution gives a lot of money and a lot of power to the center. And the reality is, not only no longer is Congress ruling at the center or in the states, but that this proportionality of financial resources the center has allows it to be very political in allocation of resources. And so the politics of coalition making in India has become a big dirt for doing a variety of things that it wants to do for electricity generation, for road building, for poverty alleviation, has to be done in a transparent,
systematic good governance. I think on the eve of what is going to happen tomorrow, definitely I hope that whoever gets into power gives special category status to Bihar. But whoever gets into power doesn't just do that, but they see to it that allocation is by rules and not by discretion. We should not have allocation of what is, after all, people's money. The money that the government gets is not the government's money, it's people's money. And when the government allocates people's money, the government has to allocate money in a transparent, rule-bound way, so that if a state makes a case for special category, you have to say, according to our criteria which we have laid down, you qualify. And for no other reason than the fact that the criteria are not met, should one deny the state. Now, I think a number of interesting issues have been raised, which I want to talk about a little bit. First of all, I think the major difference which has been made in the last 4 years, has been a change in confidence. Somebody asked me, somebody from local newspaper, when I was here for the Bihar Resurgence Conference, I had urged people to invest in Bihar with caution. And I was asked, do I still tell people to invest in Bihar with caution? I said, no, now I'm very confident that things have turned around and therefore we can invest in Bihar with full confidence that whatever is invested will actually benefit the people of Bihar. And that I think is very important. But secondly, what the Chief Minister said, what he said about poverty alleviation, I also want to say something about that. Because as it happens, my ideas are entirely in agreement with what he said. And not only that, but I had argued this in the House of Lords some years ago, when we were discussing the report of the Department for International Development, which is part of the British government, and we were asked to comment on it. And I remember at that time saying that on a global scale, the foreign aid was $50 billion at that time. And by some calculations, there were a billion poor people. I said $50 per poor person. So why don't we just give $50 to each poor person? What's the problem? If the poor person gets $1 per week, roughly speaking, their lives will be immensely improved. Because you define poverty by saying these people live under $1 a day. I'm sorry, if they live under $1 a day, you give that person $1, his income goes up by at least 14% immediately. And that's very good. And I argue the same thing for India. When we were launching NK Singh's book in Delhi, I stood up and asked who was launching the book, the finance minister, I said, why don't you just stop wasting all this money on this scheme and set up its direct transfer of money to the poor people? And at that meeting, Mukesh Ambani was there and MV Kamath of ICICI was there, and they said it's perfectly feasible to give every person certified to be poor a simple card they can put into an ATM and get the money out. There is no problem. There is no administrative problem. And a country which can give voting rights to 700 million people and which your identity card to millions can easily manage to give a card to every person certified to be under the poverty line and give him or her the amount of money needed, and that will be the end of the matter. We don't need any intermediaries, we don't need any leakage,
We don't need any corruption. We don't need to have food stopped to the food corporation there or anything like that. The point is that effective government has to be people-centered government. And no matter what we say, we haven't actually yet succeeded in creating a people-centered government everywhere. And once we can go down and ask people what they want and respect their wishes, not just at election time, but throughout in our daily practice of government. If we can relate our activities to what the people want, they know better than we know what they want. A poor person knows the value of money much more than any expert will know. A poor woman knows the pressure she is under, how to allocate her time, what she should do about getting fuel, what she should do about fetching water. All those things she knows better than any expert could ever tell her. Families know the value of putting their children to schools, which is why even poor families today, finding schools inadequate, are spending money of their own to put their children to private schools. People know the value of education. They are not stupid. They are very intelligent. We have to stop treating them as if they are stupid. We have to actually be able to relate policies so that money goes where it is most needed. And I think this is where in a lot of our, the change in India which happened and places where it did not happen, to me, there's a very simple key. And maybe I was thinking to talk about all of that. Where are the developed states of India? They're in the south or they're the coast, and maybe the south. Now, what happened in the south which did not happen in the north? What happened in Tamil Nadu, Maharashtra, Kerala, which did not happen in UP and Bihar? It was crucially the social change of challenging the domination of the higher castes. In the South, there was an anti-Brahmin movement in the late 19th century through the 20th century. Madras Presidency had reservations in the 1909 reforms which established the first set of political autonomy in parts of India. 1909, Jyotirao Phule was in Maharashtra agitating for the uplift of the backward caste and the Dalits. In the north, and I'm sorry to be partisan, especially in the Congress-dominated governments of UP and Bihar, there was a determined effort to stop social change and to reinforce conservatism, to reinforce the power of oppression, of keeping people ignorant. Because power was denied by some people from the ignorance of other people. And what's happened really is that it is in the process of undoing that social conservatism that we have seen this immense upsurge in UP and Bihar. But thus far, that upsurge has not been economically efficient. Bihar is the first example in which we at large are combining the movement for social change, the movement for giving dignity and identity and respect to the people who have been waiting for justice for centuries. We're giving them not just respect, but we're giving them something more than that, good governance, which will allow them to improve their own lives. Eventually, poverty will be removed by the poor themselves. We can only help. We can only get out of the way. We can only have policies which do not actually prevent the poor from getting out of poverty. And there are many policies like that. But if we can have people-centered governance, if we can actually combine the movement for social change
with the movement of economic efficiency and good governance. These three things go together. Just because we are for the poor, it doesn't allow us to waste resources in some theatrical populist schemes. If we are for the poor, like the poor, we will be very careful of how we spend their money. Again, when people say, who pays the taxes? The poor pay more taxes than the rich. The bulk of India's revenue comes from indirect taxes and the poor people pay that. So this is their money. And we have to spend that money, not in, as I said, a populist scheme, which is very rhetorical, but doesn't actually benefit them. But we have therefore to combine social change, social uplift with economic efficiency and good governance. And that's where I think Bihar will become a model of combining those three things. Of course, it cannot do it on its own. It needs resources. And which is why I welcome this powerful document. It's a document not meant for just academic reading. It's a document meant for persuasion and argument and, in a sense, compelling the political establishment to give better reasons than they have given this far why Bihar does not have the status. It may be that tomorrow things will happen and Bihar will get special status. I would welcome that. But I would welcome it even more if it happened for the proper objective reasons that the case made in here is not a good case just because Nitishji happens to be politically powerful at a certain moment in time, but because this is the case which gives justice to Bihar. And we need that. So good luck for tomorrow, but good wishes for the after tomorrow, because the struggle won't stop tomorrow. Thank you very much. I would like to thank Professor Meghnath Desai for his academic, professional and public commitment to Bihar. I would also like to thank Shri Uday Narayan Chaudhary, the Speaker of the Assembly, for sparing his time for this function. Our thanks to Shri Sushil Modi, who has always been a source of support for us and for chairing the program. We would like to thank the Chief Minister for not only taking up the agenda for special economic category status for Bihar seriously and in a more cogent and more effective way than it has been done before, but also in endorsing this document and considering it an important tool of advocacy. We'd also like to thank Shri Harivansh, the editor of Prabhat Khabar, for his important contribution and pointing out how various actors from civil society can be part of this process to initiate change in Bihar.
Yes.